ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟੀਵੀ ਸਕੂਲ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ, ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਤੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੂ ਐਂਡ ਐਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵੀ ਐਂਡ ਐਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਅਬਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਅਬਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਬਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਟਰਮ ਨਾ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਬਰੇਸ਼ਨਸ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਅਬਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਐਬਰੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਮੀਨਸ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਐਬਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੋਈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਆਫ ਲਾਰਜ ਅਪਰਚਰ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਅਪਰਚਰ ਕੀ ਹੋਏ? ਲਾਰਜ। ਅਪਰਚਰ ਮੀਨਸ ਓਪਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਾਰਜ, ਇਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਰਜ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਏ। ठीक है, aperture to bring all the rays of wide beam of light falling on it। जिन्नियां भी rays इधरों दी आ रही हैं, all the rays जिन्नियां भी rays आ रही हैं, ठीक है, falling on it focus at a single point। मतलब कि सारे दे सारे सिंगल पॉइंट ते आके मीट नहीं कर रही हैं। कुछ रेस इस पॉइंट ते मीट कर रही हैं, कुछ रेस ब्लू ना जेड़ा मैं बनाया इस पॉइंट ते आके मीट कर रही हैं। ठीक है, सारियां रेस प्रिंसिपल फोकस ते आके मीट नहीं कर रही हैं। केड़ी रे प्रिंसिपल फोकस ते नहीं मीट करी? दैट इज मार्जिनल रे। ठीक है, जी लास्ट विच आ रही है, देखो दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल रेस। ठीक है, बाकी जिन्नियां भी पैराएक्सियल रेस ने वो एक्चुअली मीट कित्थे आके कर रही हैं? प्रिंसिपल फोकस ते। इस रे नूं भी इस पॉइंट ते मीट करना चाहिए सी, पर ये क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इहदा अपर्चर की है? लार्ज। मेन रीजन की है इहदा होण दा इनेबल होण दा रीजन की है? क्योंकि इहदा अपर्चर की होएगा? लार्ज। अगर आपां इहदा अपर्चर स्मॉल कर दांगे, इहदा मतलब सारी दी सारी रेस एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मीट करनगियां। पर चलो स्फेरिकल अब्रेशंस क्लियर हो गए। स्फेरिकल अब्रेशंस किया जिन्नियां भी रेस है पर्टिकुलर फोकस से आके मीट करनी चाहिए सी अपन, जो कि बेसिक ही पढ़िया है। ऑल द रेस विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज कन्वर्ज एंड पास थ्रू द फोकस। ये फोकस से पास करने की जगह ये फोकस तो थोड़ा जिहा पहले बन रही है इमेज। ये जिहड़ी डिसऑर्डर बन रहा है, मतलब कि इनएबिलिटी हो रही है, इन्हें आपां की कहते हैं? स्फेरिकल अब्रेशंस। क्लियर? हुण देखो ये लाइन में शो की हुई है, दिस इज कॉल्ड कॉस्टिक कर्व। कॉस्टिक कर्व मीनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਜਨਲ ਰੇ ਤੇ ਪੈਰਾਐਕਸੀਅਲ ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਵ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। ਦਿਸ ਕਰਵ ਇਜ਼ ਕੌਸਟਿਕ ਕਰਵ। ਕਲੀਅਰ? ਪੈਰਾਐਕਸੀਅਲ ਰੇਸ ਪਰ ਚਲੀਆਂ, ਪੈਰਾਐਕਸੀਅਲ ਰੇਸ ਮੀਨਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਰਜਨਲ ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਟਿਪਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਅਬਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ? ਹਾਊ ਸਫੈਰੀਕਲ aberrations can be removed। इन्हों पर रिमूव किमें कर सकते हैं? हुण देखो एक तो मैं क्या इसकी ओपनिंग अपर्चर की है काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, अपर्चर की है काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। एक तो अपर्चर लार्ज है, दूसरा की है, ठीक है, दूसरा ये है कि यदि ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग दे करके ओपनिंग सब तो पहले देखो अगर आप यदि ओपनिंग नूं ही स्मॉल कर दिए, ओपनिंग ਨੂੰ स्मॉल करना मीनस अपर्चर ਨੂੰ स्मॉल कर दिए। ठीक है, यदि अपर्चर की वैल्यू ਨੂੰ अपर्चर शुड बी स्मॉल। अपर्चर की होना चाहिए स्मॉल। दूसरा देखो, ठीक है, पहला की है अपर्चर की है छोटा होना चाहिए। हुण दूसरा देखो, दूसरा की हो सकता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਸਫੈਰੀਕਲ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦ ਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਆਏਗਾ, ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਆਏਗਾ, ਉਵੇਂ ਨਿਊਟੋਨੀਅਨ ਤੇ ਕੈਸੀਗ੍ਰੇਨ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਰਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਸ਼ੇਪ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਿਡਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਚਰ ਅਬਰੇਸ਼ਨਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਇਨ ਸ਼ੇਪ। मतलब कि ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ, which is parabolic in nature means ਇਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਪੈਰਾਬੋਲਾਇਡਲ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇਖੋ, ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ?
कुछ जनरल न्यूमेरिकल सीख दो, मैं आपका कर भी लिया सी लास्ट टाइम। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड प्लेन मिरर, तीनों तरह के करते हैं। कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड प्लेन मिरर, ठीक, तीनों करने हैं। कॉन्वेक्स मिरर भी, कॉनकेव मिरर भी ते प्लेन मिरर भी। ਹੁਣ देखो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर ते प्लेन मिरर, लास्ट टाइम ਆਪਾਂ ਇੱਕ न्यूमेरिकल ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि दो पैरेलल रेज वाला इस फॉर्म, ठीक, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਏ, ठीक, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਇਹ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਤੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇजेस ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇजेस ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਫਿਫਥ ਇਮੇਜ, calculate the fifth image of the object placed in between two mirrors as shown। मतलब कि डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਫਥ ਇਮੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਦੇਖੋ। ਦੋ ਮਿਰਰ ਬਣਾਏ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਠੀਕ। ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇ ਗਈ, ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਟਕਰਾਏਗੀ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਇਹ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕਲੀਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ। ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇ ਗਈ, ਟਕਰਾਈ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਗਈ, ਅਗਰ ਇਹ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਬਣੇਗੀ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ, ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ 2 ਇਹ 3, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਤੇ ਇਹ 3 ਤੇ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਿਰਰ ਲਈ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਰਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਿਰਰ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਇਮੇਜ ਇਸ ਮਿਰਰ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 2 ਤੇ 5 7, 3 2 5, 5 ਤੇ 2 7, ਮੀਨਸ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਗਈ, ਟਕਰਾਈ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਬਣ ਗਈ, ਕਲੀਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਿਰਰ ਲਈ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਰਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਿਰਰ ਲਈ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ। ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੀਨਸ ਇਹ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਈ, ਟਕਰਾਈ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ 3 ਤੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 8, ਮੀਨਸ ਇਹ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਟਰਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ 2 ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਇਸ ਮਿਰਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਮੇਜ ਇਸ ਮਿਰਰ ਦੀ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਿਰਰ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਇਮੇਜ, ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਤੇ 3 ਤੇ 2 2 4 ਤੇ 5 7, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਮੇਜ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਮੇਜ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ 3 ਤੇ 5 8, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਇਮੇਜ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਇਮੇਜ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ 8 ਹੈਗਾ, 8 ਤੇ 5 8 ਤੇ 5
8 ਤੇ 5 वेरी गुड 8 10 13 कितने हो जाएगी 13 मतलब इधरों टकराई 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर चलेगी। सिमिलरली एदी दूसरी इमेज एदी तीसरी इमेज का कारण है ये देखो ये 7 ते 5 इत्थे तक कितना 7 ते कितना आ गया 5 7 ते 5 12 कितना हो जाएगा 12। हुण देखो मैं इत्थे मिरर नु एक्सटेंड किया है ठीक है। कुछ बच्चे सोचते होंगे रे तो बाहर चली गई एक्चुअली रे बाहर नहीं जाती इत्थे इनफाइनाइट रेज है मैं सिर्फ एक रे नु पकड़ के ओदे रे डायग्राम बना रहा ठीक है। हुण देखो आपां कितनी इमेजेस कैलकुलेट कर लिया 1 2 3 इधरों भी कितनी कर ली 1 2 3 ठीक। इनू करन दा इजी वे होर भी हैगा ठीक है। सिमिलरली तुसीं 4th इमेज कर लोगे सिमिलरली 5th इमेज कर लोगे। हुण देखो अगर आपां ये रे डायग्राम से ज़्यादा ना उलझना चाहिए फॉर एग्जाम्पल कई बच्चों ने कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये किवें आ गया ठीक है। पर बेसिक यही है इधरों की पहली रह गई जिन्ने डिस्टेंस से ये ऑब्जेक्ट है उन्ने डिस्टेंस से इमेज बन गई 2 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर से इमेज बन गई जी ये इमेज बनेगी इस मिररली ऑब्जेक्ट का काम करेगी ये 2 ते ये 5 टोटल कितना हो गया 7 से बन गई ठीक। यदि जी पहली इमेज है ये दूसरी इमेज का करना है ये 3 ते 5 कितना हो गया 8 यदि दूसरी इमेज ओदी तीसरी इमेज का कारण है 8 ते 5 13 यदि दूसरी इमेज यदि तीसरी इमेज का कारण है 7 ते 5 12। हुण देखो यदि 12 दी मतलब कि जी यदि ये इमेज बनी 12 उस मिररली ऑब्जेक्ट का काम करेगी 12 ते 5 12 5 17 इत्थे कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। हुण देखो यदि ये इमेज जी तीसरी इमेज है यदि चौथी इमेज का कारण बन जाएगी 13 ते 5 कितना हो जाएगा 18 इधर नेक्स्ट की बन जाएगा 18 सेंटीमीटर ठीक है। हुण देखो यदि चौथी इमेज ओदी पंजवीं इमेज का कारण है 18 ते 5 18 5 23 23 यदि चौथी इमेज यदि पंजवीं इमेज का कारण है 17 ते 5 17 5 22। हुण देखो ये काफ़ी कॉम्प्लीकेटेड जा रहा है तुहानूं वैसे इन्ना लंबा चौड़ा आएगा नहीं तुहानूं दूसरी इमेज तीसरी इमेज इत्थे तक पहुँच सकते मैं तुहानूं इलैबोरेट तां कीता ताकि तुहानूं क्लैरिटी आ जाए। इनू करन दा एक होर शॉर्टकट है देखो 2 ते 3 सेंटर ते पई है 2 ते 3 ये दोनों नूं ऐड कीता कितना आ गया 5। हुण देखो डायरेक्ट आंसर किवें कढने तुसीं इहो जिहे क्वेश्चन आ जाण सब तो ईजी क्वेश्चन भी कंसीडर कर लोगे तुसीं फिर 5 ते 2 7 5 ते 3 8 8 ते 5 13 7 ते 5 12 12 ते 5 17 13 ते 5 18 18 ते 5 23 17 ते 5 22। हुण तुसीं ध्यान नाल देखोगे ये सारी टर्म्स आ रही हैं 2 8 देन 12 एंड देन 18 एंड देन 22। सिमिलरली उस साइड की देखो 3 7 13 17 23 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਟਰਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਰਰ ਹੈ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ दूसरा ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर यदि तुसी फोर्थ इमेज दोनों साइड की कटनी है किसी भी मैथड नाल कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये मैथड ज़्यादा ईजी है। ये की करना है 2 ते 3 दिता है तुहानूं ठीक है 2 ते 3 ये दोनों नूं ऐड करके उपर 5 आ जाना 5 दे विच 2 ऐड करी जाने 12 5 5 ऐड करी जाना 5 ते 2 7 3 ते 5 8 8 ते 5 13 7 ते 5 12 मतलब 5 5 की एडिशन करी जानी है तुसीं कंटीन्यूअसली ते क्रॉस लगा के लिख देने हैं ठीक इस फॉर्म क्रॉस लगा के लिख देने हुण ये वाला क्वेश्चन तुसीं ट्राई करना है ठीक है। हुण देखो नेक्स्ट जी टर्म आप कर सकते हैं इस फॉर्म मिरर है 2 मिरर इतने सेंटर ऑब्जेक्ट हुण जी नेक्स्ट आप टर्म कर सकते हैं वो की है। हुण देखो पैरेलल मिरर कर ले हुण अगर मिरर्स नूं आपां फॉर एग्जाम्पल इंक्लीनेशन एंगल नाल रखे हुए इंक्लीनेशन एंगल नाल मतलब कि जिवें कुछ एंगल नाल रखे हुए फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री रखता 120 डिग्री रखता 60 डिग्री रखता इस फॉर्म से रखता पैरेलल मिरर वाले तो सिंपली हो जाते हैं। हुण देखो फॉर एग्जाम्पल तुहानूं इस फॉर्म से कोई मिरर
90 डिग्री है, ठीक। सिमेट्रिकली कितने ऑब्जेक्ट पे है, इतने ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक। इस मिरर तो सिमेट्रिकली पे है ए, ते इधरों भी ए सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक, सिमेट्रिकली पे है। हुण देखो ये क्वेश्चन देखने च टफ लग रहे हैं 90 डिग्री ते, ठीक। ਇਹਦੀਆਂ नंबर ऑफ इमेजेस कितनियां बननगियां ते नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग इमेजेस कितनियां होणगियां। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड when two mirrors are perpendicular to each other। दो मिरर्स दोनों परपेंडिकुलर पे हैं, ठीक है। टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली between these two mirrors। देखो क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस ने, देखने च टफ लगते हैं, बच्चे छोड़ते हैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चंस। देखो ਹੁਣ देखो ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन है, ਇਹਨੂੰ करना किवें है, सिमेट्रिकल मैथड है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, फिर तो एक बार दस दिना। फॉर एग्जाम्पल इतने कोई मिरर है, अगर इतने कोई 5 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो ये जी इमेज बनेगी वो भी कितने सेंटीमीटर से बनेगी, पीछे बिहाइंड द मिरर 5 सेंटीमीटर से। ये बेसिक रूल याद रखना, जिन्ने ते ऑब्जेक्ट है उन्ने ते इमेज बनती होंदी है, वर्चुअल इमेज। हुण देखो इनू करदे आपां सॉल्व, इनू किवें करना है वो देखो तुसीं, ये बहुत ईजी है। मैं थोड़ा जिहा रफ कर रहा, देखो इस फॉर्म देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए सेंटीमीटर से इधर है, ये मिरर है, इनू पहले अज्यूम कर लेना है एक्सटेंडेड मिरर, ये दोनों साइड से एक्सटेंडेड मिरर अज्यूम कर लेने हैं। ये बेसिक रूल याद रखना है। सब तो पहले कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई क्वेश्चन करना है, सब तो पहले उस मिरर ਨੂੰ एक्सटेंड कर देना, अप टू इनफाइनाइट कर दो, जितना मर्जी ਤੁਸੀਂ लंबा इलैबोरेट कर सकते हो, इलोंगेट कर सकते हो। ਇਹ ਕਿੰਨੇ डिस्टेंस ਤੇ a सेंटीमीटर ਤੇ, अगर a सेंटीमीटर ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ सेंटीमीटर ਤੇ बनेगी, क्लियर। अगर a सेंटीमीटर, ਇਹਦੀ इमेज भी कितने सेंटीमीटर ਤੇ a सेंटीमीटर ਤੇ बनेगी। दूसरा देखो इस मिरर ਲਈ a ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर a सेंटीमीटर ते इधरों भी कितने सेंटीमीटर ते बनेगी, a सेंटीमीटर ते। क्लियर हो गया टर्म। हुण दूसरा देखो ए भी की है, ये किवें बिहेव कर रहा है मिरर की तरह। ये जिहड़ी इमेज बनी है इस मिरर ली की किस तरह बिहेव करूगी, ये मिरर ली ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करूगी। क्लियर। देखो ए मिरर ए सेंटीमीटर, इत्थे भी कितने सेंटीमीटर ते a सेंटीमीटर ते, ए मिरर ए सेंटीमीटर, इत्थे भी कितने सेंटीमीटर ते a सेंटीमीटर ते। हुण ये दोनों इमेजेस आ गईयां। हुण ये जिहड़ियां दो इमेजेस आईयां, ये जिहड़ा आपां मिरर एक्सटेंड कीता उन्हां लई की काम कर रही है, ऑब्जेक्ट दा काम। ए अगर a सेंटीमीटर है, इत्थे भी कितने सेंटीमीटर ते बनूगी, a सेंटीमीटर ते। सिमिलरली अगर a इस मिरर ली a ऑब्जेक्ट है, अगर a सेंटीमीटर है तो इधरों भी कितने सेंटीमीटर ते होगा, दैट इज a सेंटीमीटर। क्लियर। हुण देखो अगर आप ध्यान नाल देखिए, एक सर्कल बना रहा है, ठीक है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ जिन्ने भी क्वेश्चन होंगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इसी फॉर्म च सर्कल ही बनता ਹੁੰਦਾ है। नंबर ऑफ इमेजेस देखो कितनी बन रही हैं। ए ऑब्जेक्ट सी, ए दी पहली इमेज, फर्स्ट इमेज, ए दी सेकंड इमेज, ए दी थर्ड इमेज। मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही हैं। आंसर विच तुसीं लिखना नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज 3। ਹੁਣ देखो नेक्स्ट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ नंबर ऑफ इमेजेस ਤਾਂ 3 बन रही ਹੈਗੀਆਂ, पर कितनियां इमेजेस कोइंसाइड कर रही हैं। ये देखो ए वाली इमेज कोइंसाइड कर रही ना, मींस दिस इमेज विल कोइंसाइड। नंबर ऑफ इमेजेस कोइंसाइड इज 1। मतलब ਇਹਦੇ बनने ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ, ठीक है। ਇਹਨੂੰ I1 ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, I2 एंड I3। I3 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। क्लियर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ n = 360 डिवाइड बाय थीटा -1। ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, दैट इज 90 डिग्री। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी, 360 डिवाइड बाय 3 - 1, सॉरी 360 डिवाइड बाय 90 - 1, 4 - 1 विच इज इक्वल टू
3 ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇजेस 3 ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇजेस ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 70 ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ 360 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ मतलब कि ਇਹ ਇੱਧਰ 45 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 45 ਡਿਗਰੀ क्लियर मतलब कि इस मिरर ਦੇ विद रिस्पेक्ट टू 45 डिग्री इस मिरर ਦੇ विद रिस्पेक्ट टू 45 डिग्री ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 45 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ 90 डिग्री क्लियर ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ 3 सेंटीमीटर ठीक ਹੁਣ ਦੇਖੋ 45 plus 90 is 135 डिग्री 45 plus 90 is 135 डिग्री ਹੁਣ 135 ਵਿੱਚ 90 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 135 ਦੇ ਵਿੱਚ 130 plus 135 plus 90 is 225 ठीक ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੌਜੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਮਿਰਰ ਹੈ ਇਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਰ ਹੈ मिरर के सामने खड़े होकर मैं इमेज देख सकता मिरर के पीछे जाके मैं इमेज नहीं देख सकता ठीक है ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਵੇਂ ਇਹ 180 क्रॉस कर जे ਜਿਵੇਂ ਇਹ 180 क्रॉस कर जे स्टॉप देयर ठीक है ਜਿਵੇਂ ਇਹ 180 क्रॉस कर जे ਉੱਥੇ रुक जाओ देखो क्यों ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ 180 क्रॉस करते हैं क्योंकि 180 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਰਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ मतलब मिरर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 45 एक नंबर ऑफ इमेजेस देखो कितनी बनी है 1 2 3 4 क्लियर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही हैं 4 फिर तो देखो 45 दोनों ने ऐड किया 90 पहली इमेज 90 plus 45 is 135 90 plus 45 is 135 जिवें 180 क्रॉस कर जाए इस तो बाद अपन 90 ऐड करेंगे 180 क्रॉस कर जाएगा जिवें 180 क्रॉस कर जाए स्टॉप देयर क्योंकि 180 मतलब कि 180 का मतलब 180 क्रॉस करने का मतलब मिरर के पीछे खड़े होकर इमेज बनाना जो कि पॉसिबल ही नहीं है ठीक है 180 क्रॉस करके आप स्टॉप करता पर ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇजेस ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 3 ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ 4 ਇਹਦਾ ਲੌਜੀਕ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇजेस ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 135 135 देखो लास्ट दोनों टर्म्स ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਸਮ 360 ਆ ਰਿਹਾ मतलब इमेज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ लास्ट टू टर्म्स प्लस ये जी टॉप मोस्ट टर्म लिखी हुई है जी मैं टॉप मोस्ट टर्म प्लस टॉप मोस्ट टर्म इक्वल टू 360 आई मीन्स वो वाली इमेज कोइंसाइड कर रही है इमेज कोइंसाइड कर रही है तो ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੋ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੋ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ 135 plus 135 is 270 and 270 plus 90 is 360 मतलब कि ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਮੇਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਇਮੇਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਇਹ ਇਮੇਜ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਮਝ ਗਏ उसी फॉर्म चाहिए है 135 plus 135 is 270 270 plus 90 is 360 मतलब कि अगर लास्ट में सम उन्होंने 360 आ रहा है मतलब कि वो इमेज कोइंसाइड कर रही है मतलब कि वो एक इमेज की तरह बिहेव करेगी मतलब नंबर ऑफ इमेजेस देखो 1 2 ये दोनों की जगह अपन एक ही इमेज कंसीडर करेंगे 3 क्लियर तो नंबर ऑफ इमेजेस इज 3 हुन देखो कोई भी तुहानू क्वेश्चन पा देने फॉर एग्जांपल ये लो इस फॉर्म से कहता दो मिरर ने 60 डिग्री का एंगल सिमेट्री ऑब्जेक्ट पे है या ए भी 30 डिग्री ए भी 30 डिग्री हुन देखो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बननियां हुन देखो इस फॉर्म नाल शॉर्टकट वे नाल करो डायरेक्टली करो 30 दोनों ने ऐड किया 60 plus 30 is 90 60 plus 30 is 90 plus 60 is 150 90 plus 60 is 150 300
300 + 60 इज 360 वही लॉ जो आप किया लास्ट दोनों टर्म्स प्लस कोइंसाइडिंग टर्म्स। हुण देखो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही है 1 2 3 4 ये दोनों दो एक इमेज की तरह बिहेव कराएगी क्योंकि ये लास्ट इमेज की करी है कोइंसाइड। क्लियर। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी 1 2 3 4 एंड 5 नंबर ऑफ इमेजेस इज 5। देखो तुसी अपने आप जिन्ने मर्जी क्वेश्चन बना सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल मैं अगर इस क्वेश्चन को इस फॉर्म कर दिंदा 30 डिग्री एक 10 ते दूसरा 20 डिग्री तुसी अगर देख चेक कर दे ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇजेस 11। ਇਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ठीक है क्वेश्चन ट्राई करना ठीक है। अगर नीट समझ आएगा तो आप दोबारा डिस्कस कर लांगे ठीक है। क्लीयर है टर्म ये वाला तुसी क्वेश्चन ट्राई करना ये ਤੁਹਾਡਾ होमवर्क है। क्लीयर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਨਵੈਕਸ ਐਂਡ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਫॉर एग्जांपल सिंपल लेवल तो स्टार्ट करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ अगर क्वेश्चन दे दे कोई भी कैलकुलेट द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज formed when an object is placed in front of concave mirror having focal length of 5 centimeter। ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस कर दो ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ਹੁਣ देखो इन्हों तुसीं देख के भी समझ सकते हो वैसे डायग्राम बनाओ तो थोड़ा जिहा कोशिश करो समझण दी। ये तुहाडे कोल एक मिरर है इन्होंने क्या पोजीशन नेचर सब कुछ दसना है साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। सब तो पहले देखो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर इतने देखो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। मतलब यदि फोकल लेंथ कितनी है फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। अगर यदि फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो यदि रेडियस की वैल्यू कितनी होगी द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर नेगेटिव। क्लियर। एफ की वैल्यू नेगेटिव क्योंकि इस साइड पे है आर की वैल्यू नेगेटिव क्योंकि इस साइड पे है। हुण नेक्स्ट देखो स्टेप नेक्स्ट की पूछा है वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हुण देखो ध्यान नाल देखोगे तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे पिया होया 10 सेंटीमीटर मतलब कि सी ते पिया है। अगर ऑब्जेक्ट सी ते पिया तो इमेज भी कितने होनी चाहिए है। लॉजिकली देखो कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर सी ते तो इमेज भी कितने बन जाती है सी ते। क्लीयर है। ये लॉजिक तुहानू डायग्राम देख के ही समझ आना चाहिए। ध्यान नाल देखो फिर तो तुहानू क्वेश्चन की गिवन सीगा फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर तो ऑब्वियस है अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर रेडियस के अंदर डबल रेडियस की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। हुण क्वेश्चन में तुहानू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देता है 10 सेंटीमीटर मतलब कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी कितने बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। हुण आपां चलो प्रूफ भी करके देखते हैं प्रूफ करके देखते हैं u की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज -10 सेंटीमीटर f की वैल्यू -5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला इज using mirror formula is 1/v plus 1/u equal to 1/f। the value of v is you have to calculate the value of v which is equal to 1/f minus 1/u। ਹੁਣ देखो f की वैल्यू कितनी है -1/5 तो u की वैल्यू कितनी है दैट इज 1/10 ये होगी प्लस 1/10। क्लियर। इन्हों सॉल्व किया एलसीएम लिया कितना आ गया 10 ऊपर क्या गया -2 + 1 क्लियर विच इज इक्वल टू -1/10। हूँ देखो 1/v की वैल्यू है -1/10 तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी v इज इक्वल टू -10
सेंटीमीटर, जो कि मैं तुहानू स्टार्टिंग च दस्सिया। क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता कि इमेज किवें दी बननी चाहिए है। क्वेश्चन देख के ही किवें पता चल रहा सीगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना सी 10 ते फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी सी, फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 5 है तो रेडियस की हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जेड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर ते पिया, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर ते पिया तो इमेज भी कित्थे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ते। क्लियर, मतलब 10 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट ते 10 सेंटीमीटर ते इमेज बनती है। हुण देखो अगर तुहानू इस क्वेश्चन विच पुछया हुंदा मैग्नीफिकेशन दा कि मैग्नीफिकेशन कटनी है, तुसीं मैग्नीफिकेशन किवें कटोगे? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन u। हुण देखो तुहाडे कोल v दी वैल्यू भी हैगी है, u दी वैल्यू भी हैगी है। हुण देखो मैग्नीफिकेशन दी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ v दी वैल्यू कितनी है, -10 ते u दी वैल्यू कितनी है, -10। मैग्नीफिकेशन इज -1। नेगेटिव साइन की शो कर रहा है कि इमेज इज इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन की शो कर रहा है इमेज इज इन्वर्टेड इन नेचर, और वी कैन से रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर। क्लियर, नेचर की आ गया रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, नेचर आ गया, पोजीशन आ गई, साइज पर चल गया, साइज की है सेम साइज, साइज इज ऑफ सेम साइज। क्लियर है, ये ईजी क्वेश्चंस होंगे हैं, बस तुहानू इहदे रूल्स पता होने चाहिए कि u कित्थे होना चाहिए, v कित्थे होना चाहिए ते r कित्थे होना चाहिए या f कित्थे होना चाहिए। हुण देखो इहदे नाल दा ही अगर मैं थोड़ा जिहा क्वेश्चन चेंज कर दिंदा, ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर कर दिंदा, या इहदा कॉनकेव मिरर दा ही एक एक्सेप्शनल केस भी कर लेंदे आपां। चलो कॉनकेव मिरर दा एक्सेप्शनल केस करना होवे, क्वेश्चन देखो थोड़ा जिहा चेंज करने वाली ये एक्सेप्शनल केस बन जाएगा। क्वेश्चन सेम टू सेम रखते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हुण देखो क्वेश्चन देखो अपने भी, तुसी जिवें मर्जी अपने आप क्वेश्चन बना सकते हो, तुहानू अगर कंसेप्ट क्लियर है। मैं तुहाडे कंसेप्ट क्लियर कर रहा, देखो इहदे विच कीता की है, मैं एक मिरर लिया, ये फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान नाल जब देखोगे ऑब्जेक्ट कित्थे पिया है, फोकल लेंथ की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, ठीक। ऑब्जेक्ट पे है इस पॉइंट पे, ठीक है, इतने कितनी वैल्यू है, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तुसी कैलकुलेट की करना है, इतने तुसी कैलकुलेट करना v दी वैल्यू, की कैलकुलेट करना है v दी वैल्यू, ठीक है। हुण देखो मैनू पता है कि यदि इमेज इस पॉइंट पे बनेगी, ठीक है, क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि इमेज दी वैल्यू क्या है, तो v दी वैल्यू आनी भी की चाहिए है पॉजिटिव। नेचर की है क्योंकि ये ऊपर बन रहा है, इरेक्ट है, ये देखो नेचर की आएगा इरेक्ट, मतलब कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, क्योंकि इतने जी इमेज बनेगी वो किवें बनेगी, डॉटेड लाइंस नाल, डॉटेड लाइंस नाल इस फॉर्म, ठीक। एक क्लियर हो रहा है। साइज आप देख लेंगे, साइज कितना आएगा, पोजीशन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। हुण देखो u दी वैल्यू -10 सेंटीमीटर, f दी वैल्यू -15 सेंटीमीटर। क्लियर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v, v दी वैल्यू किवें कैलकुलेट करोगे, फार्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यूजिंग मिरर फार्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, which is equal to f दी वैल्यू कितनी है, -1/15, u दी वैल्यू कितनी है, +1/10, क्योंकि एक नेगेटिव a वाला तो एक नेगेटिव a दा, दोनों को कितना सिंपलीफाई, एक ही हो गया प्लस, एलसीएम ले लो, एक कितना बन जाएगा, -10 प्लस 15 5/150 1/30, तो v दी वैल्यू क्या आ जाएगी, +30 सेंटीमीटर। मीन्स ए वाली जी वैल्यू है दैट इज 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आई है। ध्यान नाल देखो ये वैल्यू की है पॉजिटिव। हुण क्लियर हो रही है, टर्म पॉजिटिव आ रही है क्योंकि स्पेशल केस सीगा, इस साइड नेगेटिव उस साइड पॉजिटिव। हुण अगर यदि मैग्नीफिकेशन करनी होंदी, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन इज -of v/u,
विच इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू इज 30, u की वैल्यू इज -10, माइनस माइनस कट गया, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव 3। नेगेटिव साइन ऐसे, नेगेटिव साइन का की मतलब सीगा इन्वर्टेड, पॉजिटिव साइन का मतलब इरेक्ट। क्लियर, ये देखो इस फॉर्म च मैग्निफिकेशन मींस a ਜਿਹੜੀ बन रही है 3 टाइम्स देन ऑफ u, मतलब कि 3 गुना वड्डी है ऑब्जेक्ट तो। क्लियर है टर्म। हुण देखो ਇਹ क्लीयर हो गया, क्वेश्चन जिवें मर्जी ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੇਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਹੁਣ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫॉर एग्जांपल अगर दे दिया क्वेश्चन कैलकुलेट the position, nature, सेम पुराने वाले तरह and size of the image formed by convex mirror having focal length of 10 centimeter and placed in front of 5 centimeter of the in front of convex mirror। ठीक है, ईयर 5 टर्म बतानी है, बता भी सकते ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ that is -5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ that is +10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक, सेम वही फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। क्लियर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1/v = 1/f - 1/u। f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 1/10 ਮਾਈਨਸ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ +1/5। प्लस क्यों है क्योंकि a भी माइनस o भी माइनस। ठीक है, तो साढ़े को एलसीएम आ गया 10, 2 + 1 3/10। तो वैल्यू ऑफ v = 10/3 which is equal to 3.33 सेंटीमीटर। क्लियर। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल इस फॉर्म कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस फॉर्म कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिता है -5 सेंटीमीटर, मतलब इस पॉइंट से कितने पे है -5 सेंटीमीटर। तो इमेज कितने बन रही है, ये आ गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू ऑफ एफ इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना गया 20 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू कितनी आई है 3.33। मतलब कि इतने कोई ऑब्जेक्ट पे होएगा, पैरेलल गया, टकराने तो बाद इस पॉइंट से कितने फोकस से पास करे वर्चुअली, तो दूसरी 3.33, दूसरा इस पॉइंट तो जा रहा है। क्लियर हो रही है, इस पॉइंट ਤੇ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ इसका, मैग्निफिकेशन इज -v/u। नेगेटिव द वैल्यू ऑफ v इज -3.33, u ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਗਿਆ -5। ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ हैं, इस फॉर्म ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ हैं 10/3 into u ਦੀ वैल्यू इज -5 माइनस माइनस प्लस 5 1 the 5 2 the 2/3 means 0.66। मैग्निफिकेशन इज 0.66 मींस अपवर्ड, पॉजिटिव मींस इरेक्टिव में बन रही है, पर ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ 0.66 ਦਾ ਮਤਲਬ ऑब्जेक्ट ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਤੇ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ। ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕੁਐਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।